So today I will do at least 3 or 4 different problems, and in each problem I will show you the kind of a method that I am following, so that you can use that in maybe some other problem also. कोई दूसरा problem है उसमें भी तुम वही same method apply कर सकते हो. So before I actually go ahead with this relativistic kinematics problem, एक जो law है that is needed to understand is the conservation law. Okay, जब भी हम नॉर्मल न्यूटन मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स हो गया या सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो गए, उसमें वी यूज वन कंजर्वेशन लॉ व्हिच इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमें पता है वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो मोमेंटम किसी भी सिस्टम का, लेट्स सपोज 2 पार्टिकल इंटरैक्ट कर रहे हैं, 3 पार्टिकल इंटरैक्ट कर रहे हैं, बिफोर लेट्स सपोज सम काइंड ऑफ एन इंटरैक्शन and the momentum after some kind of an interaction is exactly the same. So let's suppose there are 2 particles, let's suppose A and B, ठीक है, and they are interacting with each other. All right, and after interaction their physical quantities change. Let's suppose one becomes A dash and the other becomes B dash. All right, let's suppose उनका mass change हो जाता है, velocity change होता है, whatever it is, it changes. Then we say that momentum of PA plus PB is equal to PA dash plus PB dash, where momentum here is defined as the 3 vector of momentum जो हम usually Newtonian mechanics में discuss करते हैं. The problem with this conservation law is that it is not invariant with respect to different coordinate frames of reference. Conservation law of momentum. This conservation law is not consistent or not invariant across different inertial frames of reference. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that let's suppose तुम इस जो फिनोमेना को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और इसी सेम फिनोमेना को तुम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो ये बंदा कहेगा कि हाँ मोमेंटम इज कंजर्व, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बंदा भी सेम चीज कंक्लूड करेगा. ही विल से मोमेंटम इज नॉट कंजर्व. मतलब ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट वैलिड फॉर बोथ. मोमेंटम इज नॉट कंजर्व. सो बेसिकली कोई एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूर होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हिच मोमेंटम इज कंजर्व, बट जरूरी नहीं है that is true across all frames of reference. So basically conservation law of momentum is frame dependent. So we can say that conservation law of momentum is frame dependent. Now that is a problem, right? अगर वो frame dependent है तो हम relativistic kinematics में उसको use कर ही नहीं सकते. We cannot use the normal conservation of 3 vector momentum in relativistic kinematics because it is frame dependent. I mean, it's dependent only for one particular observer out of infinite possibilities of inertial observers, right? तो इसलिए हम उसको यूज कर नहीं सकते. It is not a consistent law. However, अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, I have shared जो STR का मैंने नोट स्टार्टिंग में दिया था, आपको शेयर किया था PDF, उसमें मैंने at the end of the notes, उस PDF में at the end मैंने एक एग्जांपल आपको शो किया है. एक मैंने पार्टिकल कोलिजन लिया है, उस पार्टिकल कोलिजन में मैंने एक नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कंजर्वेशन को दिखाया कि इट इज नॉट फ्रेम इंडिपेंडेंट, और उसके बाद जो 4 वेक्टर मोमेंटम कंजर्वेशन को भी दिखाया दैट इट इज फ्रेम non-relativistic is frame dependent, and जो 4 vector momentum that is frame independent, उसको मैंने प्रूव किया है. तो मैं आज वो प्रूव नहीं करूंगा. अगर आपको वो प्रूफ देखना है तो मेरे नोट्स के एंड में बिल्कुल जाकर के कि न्यूटन मैकेनिक्स में मैंने एग्जांपल लेकर के दिखाया कि 2 पार्टिकल अगर इंटरैक्ट कर रहे हैं तो 2 अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए, एक के लिए कंजर्वेशन वैलिड रहेगा, दूसरे के लिए कंजर्वेशन वैलिड नहीं रहेगा. लेकिन जो 4 वेक्टर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हिच ऑब्जर्वर, व्हाटएवर ऑब्जर्वर. सो व्हाट आई कैन से इज दैट
let's suppose there is some kind of a particle decay reaction happening. ठीक है, a particle usually क्या होता है, relativistic kinematics जो है, one of the very popular areas in which relativistic kinematics is used in particle physics or high energy physics. Even high energy physics में क्या होता है कि जो subatomic particles होते हैं, they are traveling at very high velocities. They are traveling at velocities near about the speed of light, and they are interacting with each other. तो उस तरह के interaction में जो है relativistic kinematics becomes very valid, because normal Newtonian mechanics is not valid at all. So if you have a particle interaction, let's suppose A plus B goes to C plus D, then what does conservation of 4 momentum vector tell us? So what is valid is basically conservation of 4 momentum, not 3 momentum, conservation of 4 momentum. So conservation of 4 momentum का मतलब है that the moment 4 vector momentum P mu of A plus the 4 vector momentum of B is equal to the 4 vector momentum of C plus the 4 vector momentum of A. That's it. और अगर तुम्हारा कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है A plus B plus C, तो ऐसे ही उस तरह से ऐड कर दो ना, और कुछ नहीं है. If there are n number of particles involved, उसी तरह n number of terms आ जाएंगे, और कुछ नहीं है. So this is the conservation of 4 momentum, and this expression जो है is consistent across all frames of reference. So this is something that we can use actually. We cannot use the normal 3 vector, but we can use the normal 4 vector for conservation rules. Now I'll show you a few examples जहाँ पे हम इसको use कर सकते हैं. So let's look at a first example. Our first example is going to be associated with the two-body decay of an unstable particle. This is specially mentioned in your syllabus. So two-body decay of an unstable particle. तो ये है क्या? Basically it is just that there is, let's suppose, some kind of a radioactive particle which suddenly decays into 2 separate particles. ठीक है? So let's suppose तुम्हारे पास initially एक atom है या फिर subatomic particle है, कोई भी है, ठीक है, and then it suddenly decays into, let's suppose, 2 separate particles. So it becomes a particle, let's suppose B, and becomes a particle, let's suppose C. Alright, so I initially had a particle, let's suppose A, which became B and C, and whatever energy is released in this reaction is given off as kinetic energy of the daughter nucleus or the daughter particle. So let's suppose initially A was at rest. Initially A was at rest, but B and C are moving, and that basically energy of the reaction comes out from the rest mass energies of the this reaction. So whatever it is, that is not our concern at this moment. What is our concern is that I want to find out, let's suppose मेरे को जो A है, A का जो मुझे मास पता है और मुझे ये भी पता है जो A रेस्ट पे है, ठीक है, और let's suppose B और C में से मुझे किसी एक पार्टिकल का मास पता है, ठीक है. अब दूसरे पार्टिकल का मुझे एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है. अगर मेरे पास 2 पार्टिकल्स है, एक का मुझे मोमेंटम पता है, दूसरे का मुझे मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो यूजुअली नॉर्मल न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम just we add the momentum vectors, but here we have to add the 4 momentum vectors. Alright, so let's suppose we have this reaction, A becomes B plus C. So let's suppose, let us define their quantities. So if you look at mass, let's suppose the rest mass of A is Ma, okay, rest mass of B is Mb, rest mass of C is Mc. Alright, it is their rest mass, and they will have momentums associated with it because of their motion. So let us write down this equation. So let's suppose, so 4 vector momentum of A
फोर वेक्टर मोमेंटम ऑफ ए क्या होगा, ए जो है इनिशियली रेस्ट पे है, राइट। अगर रेस्ट पे है तो मोमेंटम वेक्टर का जो टाइम कंपोनेंट क्या है बेटा, मोमेंटम वेक्टर का टाइम कंपोनेंट क्या है, ई बाई सी ना। सो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ए अपॉन सी, और क्योंकि जो ए है वो रेस्ट पे है तो उसका जो मोमेंटम कंपोनेंट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वो जीरो होगा, ठीक है। नाउ फॉर बी, बी के लिए जो होगा, बी विल आल्सो हैव सम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ई बी अपॉन सी, लेकिन बी इज मूविंग, राइट। बी जो है मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम कंपोनेंट्स होगा, स्पेशल कंपोनेंट्स, दैट विल बी, लेट्स सपोज pb1, pb2, pb3. So basically this is nothing but pa naught, right, time component. Now similarly pc के लिए हम निकालते हैं, so this is ec upon c, so this is pc1, pc2, pc3. ओके, तो हमें जो है ये पता है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फिगरिंग आउट, लेट्स सपोज उनमें से अगर एक पार्टिकल के जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें पता है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन दूसरे के फिजिकल क्वांटिटीज हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू गेट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। सो व्हाट विल वी डू इज वी विल सिंपली अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम। So the conservation of four momentum simply tells us is that the momentum of A is equal to the momentum of B plus C. So P mu A is equal to P P plus P C. That's it. This is conservation of four momentum here. ये है तुम्हारा conservation of four momentum. We start from here. Okay, we start from here. But how to use them? So let's write down this in terms of, let's suppose हमें पता है that PA जो है is known, let's suppose जो first particle है, ठीक है, and let's suppose हमें PB भी पता है. Alright. We are interested in PC. The C particle जो है वो unknown है, उसके बारे में हमें फाइंड करना है. We can rewrite this whole equation in terms of PC mu is equal to PA mu minus PB. Okay, now what to do with this equation? What we can do is we can square it. Okay, मैं तुमको दो अलग-अलग मेथड दिखाता हूँ so that you understand the consistency of what we are doing with this operation. So whenever you have a momentum equation like this, what you can do is, इसका मतलब क्या है, that both this left hand side is equal to right hand side. इसका मतलब ये है the magnitude of this momentum vector is equal to the magnitude of this momentum vector. दोनों मोमेंटम वेक्टर जो है फोर वेक्टर है, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है. मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं बाय टेकिंग द इनर प्रोडक्ट. ओके, सो P mu C, P mu C, right? This is the inner product of left hand side, and the inner product of right hand side is P mu A minus P mu B is equal to P mu A minus P mu B. Okay, so we have basically done an inner product. तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ ही इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, एंड देन आई एंड अप गेटिंग बेसिकली द मैग्नीट्यूड of these two vectors of left hand side and right hand side respectively. So ये क्या होगा? This is nothing but the length of this vector or the norm of this vector, and यहाँ पे जो आएगा मेरे पास P mu A, अगर मैं इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, if I multiply the individual terms, so P mu A, ठीक है, और एक दूसरा क्वांटिटी होगा मेरे पास प्लस P mu B, ठीक है, माइनस P mu A, P mu B माइनस
P mu B P mu A। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे तो जो है काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, बट आई एम गोइंग टू शो यू एन इजियर मेथड। But to understand the easier method, first you need to know that these ideas are consistent. So मैंने simply magnitude find out करने के लिए दोनों साइड में इनर प्रोडक्ट ले लिया, and I end up getting basically this P mu C is equal to P mu A plus P mu B P mu। और ये दोनों जो टर्म है ना, ये दोनों जो टर्म है, दिस इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज जो कंपोनेंट्स है वो सम हो रहा है, सम होके ऐड हो रहा है। व्हाट हैपेंस व्हेन थ्री वेक्टर में जो है तुम डॉट प्रोडक्ट लेते हो, इट बेसिकली गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी ax plus bx plus ay plus by plus az plus bz, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू अ सिमिलर काइंड ऑफ एन इनर प्रोडक्ट विद अ फोर वेक्टर, you end up getting minus a naught square, sorry, not a naught square, minus a naught b naught minus a naught b naught plus a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3। The dot product of a normal vector and the dot product of a four vector में एक ही डिफरेंस है कि सबसे पहले तो नॉर्मल वेक्टर में तीन टर्म्स आते हैं, उनका समेशन होता है, फोर वेक्टर में चार टर्म्स आते हैं, उनका समेशन होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे जो टाइम कंपोनेंट है, which is basically a product of the time components of each vector, उसके सामने एक नेगेटिव साइन आता है, बस और कुछ नहीं, उसके सामने एक नेगेटिव साइन आता है। सो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, मैं अगर इसको लिखूं b mu a mu, ऐसे भी लिखूं ना, तो दिस इज ऑल्सो द सेम, सॉरी हाँ, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज a naught b naught plus a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, right? So what I'm saying is that a mu b mu is equal to this thing, ठीक है। जिस तरह से हम नॉर्मल वेक्टर्स का बोलते हैं these are you know when you change the order of the terms, it does not change necessarily the value. So I can write here this as 2 p mu a p mu b, that's it. So these quantities are basically, the value of these quantities is nothing but a scalar quantity and they are equal to each other. Alright, so if they are equal to each other, I finally get this term. Now यहाँ पे जो है, because there are so many terms involved, what I can do is I can say that this quantity is nothing but, for the sake of simplicity of calculation, okay, this quantity is nothing but P C जो है, जो four momentum of this what we can say as C particle, उसका जो है magnitude square है, right? And this is nothing but the four momentum of, मैं इसको अगर mu नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे mu लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। It's nothing but the magnitude of the particles, sorry, ये particle A है ना, हाँ, particle A, ठीक है, and this is nothing but the magnitude square of particle B, ठीक है, and this is of course minus P mu A P mu B। Okay, now what why I'm going to say is that what I can do is basically, यहाँ पे जो मैंने इनर प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, एक सिंपल तरीका है इसको करने का। Instead of taking an inner product, I can just simply take a square of this particular equation. If I square this equation, both will be equivalent, okay? If we maintain a certain set of rules, square the equation, both sides. So if I square it, I simply end up getting P C mu whole square plus is equal to P A mu whole square plus P B mu whole square minus 2 P mu A P mu B. Alright, now I can say that both these two are equivalent for the sake of calculation, okay? For the sake of calculation, as long as I consider this term
as long as I consider this term to be the magnitude of the 4 vector momentum of particle C, I consider this term as the magnitude of the 4 momentum vector of particle A, magnitude of the 4 momentum vector of particle B, and in this particular quantity I am basically going to find the what you can say inner product of A and B. तो inner product of A and B मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म आ जाएगा जब भी टाइम कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा, दैट्स ऑल. ठीक है, तो मैंने ये जो यहाँ पे इतना लंबा कुछ लिखा है इनर प्रोडक्ट लेके, सो आई कैन स्ट्रेट अवे डू अ स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन. अगर आप ऐसे भी करेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज लॉन्ग एज यू कीप इन माइंड दैट जो भी मैंने स्क्वायर किया है किसी भी 4 वेक्टर मोमेंटम का, दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द 4 वेक्टर मोमेंटम, एंड द मोमेंट आई डू अ प्रोडक्ट दिस इज नथिंग बट द इनर प्रोडक्ट ऑफ दोस टू वेक्टर्स. सो इनर प्रोडक्ट होने का मतलब ये है कि you will do a summation of all the terms involving the product of components, है ना. Product of components basically PA naught PB naught minus plus PA1 PB1 plus PA2 PB2 plus PA3 PB3, except कि बस put a negative sign in front of जो है टाइम component. That's it. So why I am saying this is that अगर आप जो है ये पर्टिकुलर मेथड फॉलो करते हैं तो दिस इज अ बेटर मेथड, बिकॉज दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग. जो इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो इफ यू वांट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द लॉजिक of whatever it is that we are following, then it is better to follow this particular method. But if you want to do a shortcut कि भाई मेरे को जो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा शॉर्ट करना है, इतना लंबा नहीं जाना, तो यू कैन डायरेक्टली स्क्वायर अप दिस इक्वेशन. बस आप अपने माइंड में इस चीज को ध्यान में रखना कि ये जो है these are the magnitudes of individual 4 momentum vector. तो मैग्नीट्यूड होने का मतलब है the normal inner product, and this particular quantity में जो टर्म्स आएंगी टाइम कंपोनेंट के आगे हमेशा एक नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है, तो मैं इसलिए तुमको ये बता रहा हूं क्योंकि मैं आइदर ये पर्टिकुलर नंबर 1 जो है ये मेथड भी फॉलो कर सकता हूँ. ठीक है, इनफैक्ट मैंने अपने नोट्स में यही मेथड ये मेथड फॉलो नहीं किया है, और मैं ये मेथड भी फॉलो कर सकता हूँ. ठीक है, मैंने अपने नोट्स में जो है यही मेथड फॉलो किया है. एंड द रीजन मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ बिकॉज कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने स्क्वायर करके फिर स्क्वायर को इस तरह से कैसे लिख दिया है. ठीक है, मैंने सिर्फ शॉर्टकट अप्लाई किया और कुछ नहीं. अगर लॉजिकली कंसिस्टेंट मैनर में आपको जाना है तो दिस इज द राइट मेथड. ओके, अगर लॉजिकली कंसिस्टेंट मैनर में आपको जाना है दिस इज द राइट मेथड फॉर डेरिवेशन. अगर आपको शॉर्टकट करना है तो दिस इज ओके, दिस इज फाइन, नो इश्यूज. बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो टर्म्स है ये मैग्नीट्यूड है और ये जो टर्म है इसमें हमेशा नेगेटिव साइन आएगा. ये तो प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली जो भी हम डेफिनेशंस फॉलो करते हैं उसमें क्या है कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है इसमें जो है ये कॉन्ट्रावेरिएंट टर्म्स है ना, तो कॉन्ट्रावेरिएंट टर्म्स के सामने जो है टाइम कंपोनेंट के सामने माइनस वन आता नहीं है, इसलिए मैं बार बार इसको मेंशन कर रहा हूं. अगर आप इस शॉर्टकट को फॉलो करते भी हैं तो ये चीज ध्यान में रखना कि एक्चुअली ये जो है लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है, बिकॉज कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को जब हम एक दूसरे कॉन्ट्रावेरिएंट के साथ हम इस तरह से लेते हैं तो टाइम कंपोनेंट के सामने नेगेटिव -1 नहीं आता है. लेकिन मैं जब भी ये मेथड फॉलो करूंगा हमेशा आई पुट अप अ माइनस साइन. द रीजन इज दैट द एक्चुअल कंसिस्टेंट मेथड ऑफ डेरिवेशन इज दिस टर्म. ठीक है, सो इसलिए मैं इसको अभी से मेंशन करके दे रहा हूं. आई एम गोइंग टू यूज दिस मेथड फॉर द टाइम बिंग. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आई विल कम बैक हियर एंड आई विल एक्सप्लेन दैट दिस इज बेसिकली द सेम एज दिस. ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर प्रॉब्लम. हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा प्रॉब्लम था ये, तो पार्टिकल डीके. पार्टिकल डीके के बाद हमें कौन सा इक्वेशन मिला? हमें तो इक्वेशन मिला ये वाला. ठीक है, आई गॉट दिस इक्वेशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर व्हिच इज द सेम एज दिस इक्वेशन, नो इश्यूज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, सो T C mu square is equal to EA mu square plus EP mu square minus. तो यहाँ पे जो है दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग इट.
बिकॉज आई एम टेकिंग इनर प्रोडक्ट, बट यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि ये जो है बेसिकली दिख रहा है इस तरह से दिख रहा है एज इफ इट इज कॉन्ट्रावेरिएंट, बोथ द टर्म्स आर कॉन्ट्रावेरिएंट, बट दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू. सो इवन इफ यू फॉलो दिस मेथड, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज पुट अ नेगेटिव साइन सो एज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2p mu a p mu b. ठीक है. नाउ द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग इज बेसिकली टू पुट अप द वैल्यूज. सो पुट अप द वैल्यूज मतलब क्या? सो फर्स्ट वन इज सो दिस वन एंड दिस वन. ठीक है. सो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होगा. सो व्हाट इज p a mu एंड p mu a, which is बेसिकली मैंने लिखा है p a mu स्क्वायर. ये क्या है? हमने कल जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर मोमेंटम वेक्टर ऑब्टेन किया था. क्या ऑब्टेन किया था? कल जो हमने ऑब्टेन किया था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर मोमेंटम माइनस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर है ना. यहाँ पे कल हमने ऑब्टेन किया था. हाँ ऑब्टेन किया है. हाँ ये ऑब्टेन किया था. याद है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कल भी बताया था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है दिस इज माइनस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी काइंड ऑफ गिवन फोर मोमेंटम. कोई भी पार्टिकल होगा, पार्टिकल A, ठीक है, तो उसका जो फोर मोमेंटम होगा p mu a, it is always going to be ma as long as ma is the rest mass, ma square minus ma square c square. इस चीज को याद में रखना है जब भी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स करोगे. ये चीज याद रखना है, इसको भूलना मत. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो लेट्स यूज दिस इन आवर दिस थिंग. सो इसको अगर यहाँ पे मैं यूज करूंगा तो ये क्या आएगा? माइनस बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस एम ए स्क्वायर सी स्क्वायर. राइट. माइनस एम ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया. सिमिलरली पी बी म्यू स्क्वायर ये क्या होगा? माइनस एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. एंड पी सी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा माइनस एम सी स्क्वायर सी स्क्वायर. दैट्स इट. सो आई एम गोइंग टू यूज दीज हियर. So let's use this here. This is nothing but minus mc square c square is equal to ma square c square minus mb square c square minus. अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे जो है pa और pb का इनर प्रोडक्ट है ना. pa जो है ये है तुम्हारा, सॉरी pa जो है ये है तुम्हारा, ठीक है, और pb यहाँ पे. तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ. लिखने के बाद इसको मैं करता हूँ. तो ea by c 0 0 0 और eb by c pb1 pb2 pb3 है ना. सो ये हो गया तुम्हारा 2. यहाँ पे आ गया e a अपॉन c 0 0 0 बेसिकली इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड e b अपॉन c pb1 pb2 pb3. ऐसा इसलिए बिकॉज जो पार्टिकल a है वो इनिशियली रेस्ट पे था, लेकिन जो पार्टिकल b है वो मूविंग पार्टिकल है. तो लेट्स कम बैक. माइनस एम सी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2. अब जो है ये जो चीज है इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. इट्स अ वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टर्म्स. इट्स लाइक अ डॉट प्रोडक्ट. द ओनली डिफरेंस इज दैट टाइम कंपोनेंट के सामने जो है तुम्हारा ये एक नेगेटिव साइन आता है और कुछ नहीं है. तो उस चीज को अगर तुम ध्यान में रखोगे कि जो है टाइम कंपोनेंट के सामने हमेशा नेगेटिव साइन आएगा तो कोई गलती नहीं है. ठीक है. ये जो ट्रिक है इसको थोड़ा दिमाग में रखना कि द मोमेंट आई मल्टीप्लाई द मोमेंट आई डू दिस थिंग मल्टीप्लाई लेट्स सपोज पीए विद पीबी या ऐसे कोई भी दो अलग अलग फोर मोमेंटम वेक्टर है तो उनकी कंपोनेंट्स को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. बस टाइम कंपोनेंट के सामने एक नेगेटिव टर्म रखना. दैट्स ऑल. इस चीज को फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं. बाकी कुछ मालूम हो या ना हो, ये इनिशियल जो भी हमने डिस्कस किया वो सब मालूम हो या ना हो, सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना. तो फिर यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशंस एटलीस्ट. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टाइम कंपोनेंट है ई ए अपॉन सी उसके सामने एक नेगेटिव साइन लगा दिया बस. दैट्स ऑल. एंड ई बी बाई सी दैट्स ऑल. और द रेस्ट है तो 0 इंटू PB1, 0 into PB2, 0 into PB3.
3। तो ये सब जो है नॉन नेगेटिव होगा, लेकिन क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा। mc स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ma स्क्वायर c स्क्वायर माइनस mb स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये क्या है, ये दे विल गेट एडेड ना, बिकॉज दिस इज अ इनर प्रोडक्ट। सो -2, ठीक है। अब माइनस माइनस ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, बचा तुम्हारे पास क्या, बचा तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर क्वांटिटी। सो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो प्लस EA EB अपॉन C स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा EA EB अपॉन C स्क्वायर। नाउ इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जो EA है वो हमें क्या है पता है, EA is nothing but the total energy of the particle A. So what is the total energy of the particle A? Because the particle is at rest. पार्टिकल का कोई मोशन है नहीं तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी हम लिख सकते हैं ma c स्क्वायर, where ma is the rest mass, ठीक है। This is the energy of particle A because the particle was initially at rest. So I can write this as mc square c square is equal to minus ma square c square minus mb square c square plus 2 upon c square multiplied by EA is ma c square EB. So c square gets cancelled and you are left with let's suppose इन दो सारे टर्म्स को मैं एक साइड लेके आता हूँ। So 2ma EB is equal to ma square c square plus mb square c square minus mc square c square. So EB is equal to ma square plus mb square minus mc square c square upon 2ma. Let's suppose this is point number 1 which is easily obtained. लेकिन मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, that जो A है that is known, B है known, this is unknown. So we are interested in C, okay? So if we are interested in C, what we are going to do is, we are going to say that the total energy, देखो कंजर्वेशन जो लॉज वैलिड रहता है उसमें से एक तो है फोर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन. सो आई कैन आल्सो से EC इज इक्वल टू EA माइनस EB. ठीक है, EA हमें क्या है पता है, EA आई नो. ठीक है, EB हमें क्या है पता है, we are interested in finding EC. Now quite simple. So EC is equal to EA is nothing but MA C square minus EB is nothing but MA square C square plus MB square C square minus MC square C square divided by 2MA. Let's add both these two terms. So 2MA, तो ये बन गया 2MA square C square minus MA square C square plus MB square C square minus MC square C square. So finally the total energy of the third particle C comes out to be MA square plus MB square minus MC square. एक सेकेंड, ये तो माइनस हो जाएगा ना, ये यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये हो गया तुम्हारा प्लस. MA square minus MB square plus MC square upon 2MA C square. This is the total energy of the final unknown particle. So A particle decays into B and decays into C. A is known, B is known, C is unknown. We can find it in this particular manner. ये जो energy है, we can calculate using this 4 vector. So this is your entire derivation for finding out the energy of the third particle in a process where an unstable particle is decaying into 2 daughter particles.
और ये नॉर्मल आप नॉन रिलेटिविस्टिक मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। और अगर नॉर्मल नॉन 4 वेक्टर से भी आप कोशिश करते हो ना तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर जैसे नॉर्मली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं रिलेटिविस्टिक मेथड से ही, लेकिन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। 4 वेक्टर से दिस प्रॉब्लम बिकम्स वेरी इजी एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम माइट कम इन द एग्जामिनेशन। ये तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकता है। इनफैक्ट ये जो है एमएससी में भी आ सकता है। एमएससी में पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे तो पार्टिकल फिजिक्स में रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन इसी तरह से होता है। तो इस प्रॉब्लम में कोई डाउट है बेटा? Do you have any doubt in this particular derivation? Another person is joining. 1 2 3. बताओ, do you have any? सर निर्देश को ज्वाइन कर लो। वो का निर्देश, का निर्देश? उसको बोलो वापस आने के लिए, मैं ज्वाइन कर दूंगा। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ तो मेरा पूरा विंडो जो है ये मेरे ओपन नोट से भर जाता है, तो मुझे दिखता नहीं है कौन आ रहा है नहीं आ रहा, तो मुझे दोबारा मिनिमाइज करना पड़ता है, तब जाके मुझे दिखता है। लेट जो आते हैं तो फिर मुझे बीच बीच में देखते रहना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली मालूम नहीं चलता है। तो उसको मैसेज करके बोलो कि आ जाए, आई विल जॉइन हिम, नो इश्यूज। या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर दे, जब वो ज्वाइन करे तो मैं फोन में देख के उसको ज्वाइन करता हूँ। हाँ बेटा, तो यहाँ आपको कुछ डाउट है या फिर शुड आई मूव अहेड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? नो, दीज आर पार्टिकल्स यार। वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ कैसे मूव करेंगे? मास है ना जिनका, यहाँ पे रेस्ट मास। देखो यूजुअली क्या है, जो है हम जो है रेस्ट मास में एक m नॉट लगाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे कितने सारे सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है ना, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं है। तो ये जो है रेस्ट मास है। यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम जो ये प्रॉब्लम किया था कल, यहाँ पे जो मैंने ये जो डिराइव किया था, ये रेस्ट मास था ना, ये रेस्ट मास है। 4 मोमेंटम को जब मैंने डिफाइन किया था तो मैंने रेस्ट मास के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो हमेशा जब तुम किसी भी 4 मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो उसमें जो माइनस एम नॉट स्क्वायर है वो रेस्ट मास ही है। और चाहे वो पार्टिकल मूव कर रहा हो या चाहे वो पार्टिकल रेस्ट पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पार्टिकल मूव करे या रेस्ट करे उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी उसका 4 मोमेंटम होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस एम नॉट स्क्वायर ही होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट। इट इज कॉन्स्टेंट फॉर एनीथिंग, किसी भी पार्टिकल के लिए कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, कहाँ गया, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया है, हाँ यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया है, पार्टिकल रेस्ट पे है लेकिन उसका भी जो 4 मोमेंटम होगा मैग्नीट्यूड वही है। पार्टिकल बी मूविंग है, सी मूविंग है, लेकिन उनका भी 4 मोमेंटम का मैग्नीट्यूड वही है। वही मतलब एम ए स्क्वायर पार्टिकल ए के लिए, एम बी स्क्वायर पार्टिकल बी के लिए और एम सी स्क्वायर पार्टिकल सी के लिए। और ये सब उनका रेस्ट मासेस है। एम सी इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल सी, एम बी इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल बी, एम ए इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल ए, ठीक है। यस हाँ हाँ कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इसका मतलब ये है कि जो एंटायर मोमेंटम वेक्टर है वो भी कंजर्व रहता है और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी कंजर्व रहती है। तो इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा बहुत सारे। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है,
ठीक है, और कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये जो पार्टिकल है इसके मोमेंटम को हम px और py में कर देते थे ना, याद है? और फिर p x एक्सिस में हम मोमेंटम कंजर्वेशन अलग से करते थे और y एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन अलग से करते थे, याद है? हाँ याद है। तो हम तो वो जो नॉर्मल कंजर्वेशन मोमेंटम करते थे न्यूटन मैकेनिक्स में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, हर एक्सिस में जो कंपोनेंट्स का जो इंडिविजुअल कंजर्वेशन वैलिड रहता है, तो इसी तरह से तुम जो कह रहे हो यहाँ पे टाइम कंपोनेंट का भी अलग से कंजर्वेशन वैलिड रहेगा और जो है स्पेस कंपोनेंट का भी अलग से कंजर्वेशन वैलिड रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा होगा कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट कॉम्पटन इफेक्ट इज आल्सो अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कॉम्पटन इफेक्ट का प्रॉब्लम जो है नॉर्मली तुम सॉल्व कर सकते हो, मुझे मालूम है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो उसमें स्पेसिफाई कर देगा, तो प्लीज फाइंड आउट द कॉम्पटन वेव दिस थिंग चेंज इन द वेवलेंथ यूजिंग 4 वेक्टर्स। फिर वो कैसे करोगे? तो लेट्स लुक एट दैट प्रॉब्लम। सो लेट्स सपोज जो है तुम्हारे पास कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, एक लाइट वेवलेंथ होती है, ठीक है, ठीक है, वो जो है किसी इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट के साथ स्ट्राइक करता है, ठीक है, फिर जो लाइट है वो स्कैटर हो जाता है विद डिफरेंट वेवलेंथ, ऑलराइट, और जो इलेक्ट्रॉन है इट गेन सम एनर्जी and it starts moving in some direction. Very simple. Compton effect is one of the very famous examples of demonstrating the particle nature of light. जो light होता है, it interacts with particles in the same way that particles interact with each other. पार्टिकल्स जैसे किसी कैरम बोर्ड में, बिलियर्ड बोर्ड में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है, कलाइड करता है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन मूव करता है, कंजर्वेशन मोमेंटम होता है, उसी तरह से लाइट भी एज अ पार्टिकल इंटरैक्ट करता है पार्टिकल के साथ। तो दिस वाज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स व्हिच प्रूव्ड व्हिच वाज वेरी हेल्पफुल इन शोइंग द डुअल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। एनीवेज, सो कॉम्पटन इफेक्ट के केस में जो है, लेट्स लुक एट दिस। It's something that is happening in 2-dimensional plane, all right? So initially let's suppose तुम्हारे पास कोई lambda wavelength का light है, all right, जो scatter होने के बाद बन जाता है lambda dash wavelength बन जाता है, ठीक है, and it gets scattered at an angle of theta, all right, and there is some kind of a particle electron जिसका rest mass है m0, ठीक है, after some time it goes and it starts moving with a particular velocity. Now I can apply the same concept of 4 vector here also. So let's define how can we apply it. Let's देखते हैं। निर्देश आया क्या? Somebody is there. Okay. Okay, so यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो है I can also apply conservation of for momentum. Okay, how will I apply conservation of 4 momentum? So conservation of 4 momentum के लिए what I have to say is that before the interaction या before the collision and after the collision particles की जो वो मोमेंटा है वो क्या है बेसिकली? So P before is equal to P after. Okay, so let us specify that what happens before केस में क्या रहता है। So before की केस में सबसे पहले तो ये है तुम्हारे पास गामा, let's suppose a photon है, photon को let me specify using this gamma symbol. Okay, so this is a photon. So before it interacts with the particle, photon का एनर्जी क्या है? photon का एनर्जी E by C हम लिखते हैं ना, तो E is what? E is h nu, है ना, E is h nu, तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं h nu अपॉन c, ऑलराइट, ठीक है। सो द पार्टिकल होता है, सो लाइट के लिए जब भी तुम लाइट के साथ 4 वेक्टर अप्लाई करते हो तो लाइट के केस में E इज ऑलवेज इक्वल टू h nu, ठीक है। तो P नॉट जो होता है, P नॉट इज नथिंग बट E by c, सो दिस इज नथिंग बट h nu by c। इस चीज को याद रखना बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड all the time. Now, because let's suppose this is the x axis, ठीक है, तो यहाँ पे जो है P gamma, sorry, 1
P gamma 2, P gamma 3. So these are ordinary relativistic momentum in the 1, 2 and 3 axis. ठीक है, particle is moving, let's suppose, in the x axis. In that case जो y component होगा वो 0 होगा और z component जो 0 होगा ये जो है नॉन जीरो रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली. सो नॉन जीरो कंपोनेंट क्या है? नॉन जीरो पार्टिकल का मोमेंटम क्या है? लाइट का मोमेंटम क्या होता है? जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होता है, लाइट का मोमेंटम हम ऐसे लिख सकते हैं. Quite simple as that. Relativistic momentum, the total relativistic momentum, ठीक है, not the four vector momentum, the ordinary relativistic momentum जो हमने कल प्रूव किया था. क्यों? क्योंकि रेस्ट मास जो है जीरो होता है. क्यों? सो E स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर लिखा था ना हमने कल, ऑर्डिनरी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के साथ ये एक्सप्रेशन है. जो लाइट के लिए रेस्ट मास क्या होता है? m नॉट इज इक्वल टू 0 होता है. तो जो एनर्जी और रिलेटिविस्टिक ऑर्डिनरी मोमेंटम का रिलेशन है वो ये रहता है. सो E इज इक्वल टू pc. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो है तुम्हारा y और z एक्सिस में 0 0 है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू E अपॉन c, व्हिच इज नथिंग बट h nu अपॉन c 0 0. राइट, ये समझ आया मैंने फोर वेक्टर मोमेंटम फॉर अ लाइट पार्टिकल कैसे डिफाइन किया, फॉर अ फोटोन पार्टिकल. इज दिस ओके बेटा? यस. Okay, so let's go to the electron. So before the collision, the electron इसको हम लिखते हैं let's suppose m. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है E अपॉन c. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है? m नॉट c स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि रेस्ट में है तो इसको हम लिख सकते हैं m नॉट c. m नॉट c, और क्योंकि वो रेस्ट पे है उसका कोई भी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम नहीं है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट, अब आफ्टर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, लेट्स सपोज इसको लिखते हैं गामा डैश. ओके, तो गामा डैश का क्या होगा? इसका नया एनर्जी होगा h nu dash upon c. ऑलराइट, नाउ दिस फोटोन इज मूविंग इन द xy प्लेन. पहले इट वाज मूविंग ओनली along the x axis, so this is moving along the xy plane, so it will have momentum components in the x axis as well as in the y axis. px भी होगा, py भी होगा. px क्या होगा? px is nothing but the total momentum p cos theta. ठीक है, और py क्या होगा? this is nothing but total momentum sin theta. Alright, let's suppose from the perspective of an observer in the xy frame of reference. ठीक है, so यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि सॉरी ये मोमेंटम में ये p डैश डिफाइन कर देते हैं, p डैश. ऑलराइट, डैश डिफाइन कर दिया. सो ये तुम्हारा क्या हुआ? दिस बिकम्स व्हाट? सो दिस बिकम्स द p x एक्सिस का जो कंपोनेंट है, दैट बिकम्स व्हाट? दैट सिंपली बिकम्स p इज नथिंग बट h nu डैश अपॉन c cos थीटा, एंड y एक्सिस में हो गया तुम्हारा h nu डैश अपॉन c sin थीटा, z एक्सिस में कुछ भी नहीं, 0. ऑलराइट, दिस इज फाइन. ये समझ आ गया? मैंने सिर्फ x और y एक्सिस का कंपोनेंट लिखा है, दैट्स ऑल. और उसी तरह से जो है तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन का है लेट्स सपोज E डैश mu. सो इलेक्ट्रॉन का जो है तुम्हारा यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं आई थिंक कैलकुलेशंस में. हाँ, इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन में जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी डिफाइन कर दोगे. इलेक्ट्रॉन का है जो भी एनर्जी होगा इसका, इलेक्ट्रॉन का टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी E डैश अपॉन c and PE dash 1 and PE dash 2 and PE dash 3. Alright, now let's put all of these in the equation. What is the equation? The conservation of momentum. The conservation of momentum tells us that P mu gamma plus P mu m is equal to P mu gamma dash प्लस p mu e dash. ठीक है, यहाँ पे जो बार बार मैं म्यू का सब सुपरस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ इसको हटा देते हैं फॉर द टाइम बिंग. बहुत लिखना पड़ता है, इसको हटा देते हैं. मैं सिर्फ, बट लेट्स अंडरस्टैंड दैट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फोर वेक्टर्स हियर. इज देयर इम्प्लिसिट? हाँ, उसको हटाने के बाद आई राइट इट एज p
सॉरी इलेक्ट्रॉन, इसको m डैश लिख देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन के m डैश लिख देते हैं। m डैश so pm dash, ये pm लिख देते, pm dash, so pm dash is equal to p gamma plus pm minus p gamma dash। alright, now इसको हमें क्या करना है, as I said in my last example, इस तरह का इक्वेशन आने के बाद what we do is we simply square both sides। तो या तो तुम उसको स्क्वायर करो या फिर you take an inner product। so inner product करने के बाद भी तुम्हें वही रिजल्ट आएगा जो स्क्वायर करने के बाद आएगा। तो स्क्वायर करोगे you just make sure that जो भी multiplicative terms है it is basically inner product ultimately speaking। so if I square both sides, so if I square both sides, I simply end up getting pm dash square is equal to p gamma square plus pm square plus p gamma dash। एग्जिट हो गया? हाँ, दोबारा आ जाओ लक्ष्य, ठीक है, ठीक है, लक्ष्य बोले राइट, ओके ओके। सो p गामा डैश स्क्वायर, ठीक है, तो p गामा डैश स्क्वायर, और जो टर्म्स है टर्म्स को भी मैं ऐड कर सकता हूं। सो आई विल गेट फर्स्ट अ टर्म ऑफ 2 p gamma pm minus 2 pm p gamma dash minus 2 p gamma p gamma dash। okay, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है, this is what I end up getting। now let's look at these particular quantities, it's very easy actually। so let's look at the individual terms। so individual terms में जो p gamma square है, what is that? that is the magnitude of the photon, है ना, जो फोटोन है गामा फोटोन है, तो मैग्नीट्यूड गामा फोटोन क्या है? माइनस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। लेकिन फोटोन का रेस मास क्या रहता है? फोटोन का रेस मास 0 रहता है, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी 0। ओके, तो इस चीज को भी थोड़ा याद रखो, इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं इसको थोड़ा सा याद रखो, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सो लाइट फोटोन के लिए लाइट फोटोन का जो मैग्नीट्यूड होता है पी गामा, कोई भी लाइट फोटोन हो, कुछ भी वेवलेंथ हो, डजंट मैटर, उसका जो इनर प्रोडक्ट रहता है और उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है पी गामा पी गामा। सो उसका जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली इट इज नथिंग बट 0। ओके, क्योंकि इसका रेस मास 0 रहता है, सिंस m नॉट फॉर फोटोन is 0, the rest mass of a photon particle is 0, hence the length or the norm is also always equal to 0। ये हो गया पहला टर्म तुम्हारा, ठीक है। दूसरा टर्म है pm स्क्वायर। क्या है pm स्क्वायर? क्या है pm स्क्वायर? इज नथिंग बट माइनस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा टर्म ये हो गया दूसरा टर्म। तीसरा टर्म क्या है? p गामा डैश स्क्वायर, ये भी 0 है, चाहे गामा फोटोन कुछ भी हो, कितना भी एनर्जी हो, रेस मास हमेशा उनका 0 रहता है, ये भी 0 हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड द टर्म 2 p गामा pm माइनस 2 pm p गामा डैश, इसका फाइंड आउट करते हैं। सो ये क्या है? बेसिकली 2 pm, इसमें हम लिख सकते हैं p गामा माइनस p गामा डैश। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? So 2 pm क्या है? pm is nothing but the force momentum associated with the electron at rest. Let me check if there is somebody else. No. So pm is nothing but the electron at rest. So electron at rest के लिए क्या है तुम्हारा? electron at rest के लिए basically you have m naught c 0 0 0, ठीक है। And then what do you have? पी गामा के लिए क्या है? पी गामा के लिए मैंने यहाँ डिफाइन किया था, पी गामा के लिए दिस इज व्हाट इज फॉर पी गामा, एंड पी गामा डैश के लिए ये, ठीक है, दिस इज पी गामा
एंड पी गामा डैश। सो इसको वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। सो पी गामा इज नथिंग बट एच न्यू अपॉन सी, ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है, एच न्यू अपॉन सी 0 0 माइनस, और गामा डैश के लिए क्या है, गामा डैश के लिए है तुम्हारा cos थीटा sin थीटा। सो एच न्यू डैश अपॉन सी, एच न्यू डैश अपॉन सी cos थीटा, एच न्यू डैश अपॉन सी sin थीटा एंड 0, ये हो गया तुम्हारा गामा डैश। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 m नॉट c 0 0 0, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एच न्यू, इंडिविजुअल टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी, ये हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म हो गया तुम्हारा एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी cos थीटा। तीसरा टर्म हो गया तुम्हारा 0 माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी sin थीटा, और चौथा टर्म हो गया 0, ठीक है। नाउ आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस द टर्म्स हियर, ये जो टर्म्स है यू मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, इनके साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से जो है आएगा मल्टीप्लाई करने से आएगा सबसे पहले तो 2 टर्म, ठीक है, दूसरा है तुम्हारा जो है हाँ, m नॉट c मल्टीप्लाइड बाय h न्यू अपॉन c माइनस h न्यू डैश अपॉन c एंड माइनस टर्म आ जाएगा। माइनस टर्म किस लिए है, बिकॉज ये टाइम कंपोनेंट है ना, टाइम कंपोनेंट के टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया, और बाकी सारे जीरो होंगे, क्योंकि ये जीरो है, ये जीरो है, इंडिविजुअली इन टर्म्स के साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेगा। तो ये आ गया तुम्हारा -2 m नॉट c h न्यू अपॉन c माइनस h न्यू डैश अपॉन c, ये हो गया तुम्हारा दिस पर्टिकुलर टर्म। ओके, एंड द लास्ट टर्म, तो ये हो गया हमारा ये टर्म, एंड लेट्स लुक एट द लास्ट टर्म 2p गामा डैश। सो 2p गामा डैश, इसको देखते हैं क्या है। सो 2p गामा डैश, इसमें क्या है, एक माइनस टर्म है ना, माइनस टर्म को लिख देते हैं। सो माइनस टर्म, सो -2 p gamma is what, p gamma is h nu upon c, h nu upon c 0 0, ये p gamma है, p gamma dash क्या है, p gamma dash है h nu dash upon c, h nu dash upon c cos theta, h nu dash upon c sin theta and 0. So this again multiply the terms here, so minus if you multiply the terms here, what will you get? So -2 if you multiply the terms here, so h nu upon c multiplied by h nu dash upon c, इसके सामने एक माइनस टर्म आ जाएगा, ठीक है, और फिर h nu upon c multiplied by h nu dash upon c cos theta plus 0 plus 0, है ना। So this comes out to be basically -2 h nu upon c and multiplied by h nu dash upon c, इसको बाहर निकाल देते हैं, so अंदर रह गया तुम्हारा cos theta minus 1, that's it. So this is your this term basically, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टर्म। so इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, this whole equation, ये जो पूरा इक्वेशन है, let's put substitute whatever we have obtained in this particular equation. So pm dash square is equal to p gamma square plus pm square plus p gamma dash square plus 2p gamma pm minus 2pm p gamma dash minus 2p gamma p gamma dash. तो इसको दोबारा से लिखते हैं, pm dash क्या है, pm dash हाँ, ये जो है ना pm dash है, pm dash, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज तुम ध्यान में रखो, तुम ये सोच सकते हो कि मैं यहाँ से यहाँ तक ही क्यों आया, मैंने pm डैश को ही क्यों एक लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया हूँ। pm डैश को मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए लेके आ गया हूँ क्योंकि मुझे जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो नहीं पता। सो जिन चीजों का मुझे मोमेंटम नहीं पता है, तो उन चीजों को मैं इंडिविजुअल एज ए टर्म अगर एक साइड में लेके आऊंगा और उसको मैं अगर स्क्वायर करूंगा पूरे इक्वेशन को, तो क्या होगा, एक बेनिफिट ये रहता है कि किसी भी टर्म को जो मैं जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूं तो वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है,
ठीक है ना। तो इवन दो मुझे जो इलेक्ट्रॉन है उसका इंडिविजुअल रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में नहीं पता है, इवन देन उसका जो फोर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ही रहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन मूवी हो, कुछ भी हो, ठीक है। एंड दिस गिव्स अस अ ह्यूज बेनिफिट। सो इसलिए मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोस टर्म्स वैनिश, ठीक है। जो एक्स वाई जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या वो वैनिश हो गया, मुझे पता भी नहीं वो वैनिश ही हो गया, बिकॉज़ डायरेक्टली आई टुक द स्क्वायर ऑफ दिस ऑन वन साइड। सो नाउ आई कैन रीराइट द होल इक्वेशन। सो रीराइट करने के बाद क्या आएगा, सो लेट्स रीराइट, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. So putting back all in equation 1, so putting everything, ठीक है। सो माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है तुम्हारा पी गामा और पी गामा डैश, ये दोनों जीरो है, और पी एम स्क्वायर भी वही होगा, पी एम स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, ये भी वही रहेगा। सो जीरो, यहाँ पे जीरो माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस जीरो, ठीक है। और ये टर्म क्या है, ये टर्म जो है तुम्हारा है माइनस टू एम नॉट सी, माइनस टू एम नॉट सी एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म इज माइनस टू एच न्यू बाई सी इंटू एच न्यू डैश बाई सी cos theta minus 1. That's it. So I put up all these values into this particular equation, ठीक है। इस इक्वेशन में सारा पुट अप वैल्यू कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और ये टर्म जो है ये पुट कर दिया, और ये जो टर्म है इसको भी मैंने पुट कर दिया, and I end up getting this particular equation. So I just have to solve it and you will get the equation. So let's solve it. तो सबसे पहले तो ये जो है ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। So ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। So you are left with, let's bring one thing to one side. So इसको में जो है 2 m naught c h nu upon c minus h nu dash upon c is equal to is equal to 2 h nu upon c into h nu dash upon c, 1 minus cos theta लिख देता हूँ, माइनस साइन का ऑब्जर्व कर लिया। तो यहाँ पे जो है 2 गेट्स कैंसिल्ड, ठीक है। और न्यू अपॉन सी क्या होता है, न्यू अपॉन सी इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्डा, ओके। सो इसको आई कैन राइट एज m नॉट c h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू h upon lambda into h upon lambda dash 1 minus cos theta. So यहाँ पे जो h का टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। h का टर्म जो है तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा एक टर्म के साथ। So you end up getting, let's suppose lambda dash 1 upon lambda minus 1 upon lambda dash is equal to h upon m naught c 1 minus cos theta. So if you multiply this here, so lambda cancel हो जाएगा, you will get lambda dash minus lambda is equal to h upon m naught c 1 minus cos theta, which is the usual expression obtained in the case of a Compton effect. So required expression for Compton effect. समझ आया ये मेथड? बेटा कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, बिकॉज so these two are the problems. एक तो अनस्टेबल पार्टिकल का डीके हो गया, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, जहां पे मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें मैं करूंगा नहीं।
सो अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट, रिवाइज करा देता हूँ एक बार। कॉम्पटन इफेक्ट में एक वेवलेंथ जो है, एक वेवलेंथ का जो फोटोन है, इट स्ट्राइक्स विद इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्स, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग। मैंने जो चारों पार्टिकल, बेसिकली दोनों पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर द इंटरेक्शन, इनकी 4 मोमेंटम्स को स्पेसिफाई कर दिया है क्या हुआ है। इसके केस में मैंने एक चीज ये नोटिस किया है कि एनर्जी ऑफ द लाइट फोटोन इज h nu एंड p नॉट फॉर द लाइट फोटोन इज h nu अपॉन c, पहला चीज। और वो इसलिए क्योंकि जो लाइट फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 रहता है, ठीक है। और लाइट फोटोन का जो p मोमेंटम है x एक्सिस और y एक्सिस में, उसमें मैंने cos थीटा और sin थीटा का टर्म लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया, ठीक है। और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर हो जाता है उसका जो है वेलोसिटीज हमें नहीं पता, तो इसलिए मैंने पी एम डैश को एक साइड में लेके आया। एक साइड में लेके आने के बाद जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर करने के बाद ये जो है माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाता है। तो इसलिए इवन इफ आई डोंट नो द स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट मैटर, आई कैन स्टिल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और उसी तरह से बाकी टर्म्स को भी मैंने स्क्वायर करने के बाद फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के लिए पुट इट बैक into this equation, and when I put it back, I end up getting the required Compton effect expression. Have you understood this? Any questions? Lakshadweep, Tamanna, Nirdesh, any questions you have? Okay. तो ये दोनों जो प्रॉब्लम मैंने किया है, these problems are done using conservation of momentum. So नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं करूंगा वो कंजर्वेशन मोमेंटम से रिलेटेड है नहीं, तो इसलिए अगर कंजर्वेशन मोमेंटम से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज इफ यू गेट एनी अदर प्रॉब्लम वेयर कंजर्वेशन मोमेंटम इज नेसेसरी, देन यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर मेथड कि तुमने वो प्रोसेस को समझ लिया, उस प्रोसेस में जो इनिशियल बिफोर द इंटरेक्शन एंड आफ्टर जो इंटरेक्शन जो भी पार्टिकल्स इन्वॉल्व है उनका 4 मोमेंटम लिख दिया, फिर उन 4 मोमेंटम को एज एन इक्वेशन तुमने डिनोट कर दिया, एंड डिनोट करने के बाद फिर उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद इट बिकम्स इजी, as long as you make sure that स्क्वायर करने के बाद जो इंडिविजुअल मोमेंटम वेक्टर है उसका जो स्क्वायर है दैट इज सिंपली गोइंग टू बी माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। और जब तुम किसी 2 अलग अलग पार्टिकल के मोमेंटा को प्रोडक्ट करोगे तो उसमें सिर्फ टाइम कंपोनेंट के सामने एक -1 लिखना, अदर डोंट फॉरगेट दैट, दैट्स ऑल, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट प्रॉब्लम, जिसमें हम कंजर्वेशन मोमेंटम यूज नहीं करेंगे, we will use what is known as a transformation equation. So transformation equation से भी हम जो है क्या कह सकते हैं, we can solve problems. So this is the third problem that is called the relativistic Doppler effect. So you already know what Doppler effect is. जब भी कोई साउंड से रिलेटेड या लाइट रेडिएशन से रिलेटेड कोई सोर्स जो है और कोई ऑब्जर्वर जो है, इनके बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन होता है, देन देयर इज एन अपैरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर वेव इन्वॉल्व्ड। तो जैसे गाड़ियां आती है रास्ते में, तुम दूर होता है, तुम्हारे पास आता रहता है, तो यू सी दैट देयर इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, एंड जब तुमको क्रॉस करके तुमसे दूर चला जाता है, तब ऑल्सो देयर इज एन अपैरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। इवन इन द केस ऑफ लाइट, जब हम नॉर्मल जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को स्टडी करते हैं, जब गैलेक्सीज दूर जा रहा होता है, गैलेक्सीज तुम्हारे पास आ रहा होता है, देयर इज अ पर्टिकुलर रेड शिफ्ट दैट हैपेंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या फिर ब्लू शिफ्ट दैट हैपेंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो दैट शिफ्ट इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ द अपैरेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। तो साउंड के केस में भी होता है और लाइट के केस में भी होता है, बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइट बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। साउंड के केस में जो होता है वो तो नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट होता है, जो यू कैन प्रूव यूजिंग नॉर्मल आइडियाज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रिलेटिव मोशन। बट जो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली व्हेन अ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटीज नियर अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, तो इफ देयर इज अ सोर्स which is also emitting some kind of electromagnetic radiation, तो उस सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या ऑब्जर्व करेगा? I mean if the source is emitting a frequency of light of nu, तो जो relative motion पे है ऑब्जर्वर, he will not observe nu, he will observe nu dash. Okay, so this is like everything else. Like observer अगर बहुत हाई वेलोसिटी में है तो वो लेंथ का मेजरमेंट अलग करेगा, नॉट द रेस्ट लेंथ, वो टाइम का मेजरमेंट अलग करेगा, नॉट द प्रॉपर टाइम, वो मास का मेजरमेंट अलग करेगा, नॉट द रेस्ट मास, वो
वेलोसिटीज का मेजरमेंट अलग करेगा, सिमिलरली वो फ्रीक्वेंसीज का मेजरमेंट भी अलग करेगा. सो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. सो लेट्स सपोज there is some kind of a source which is emitting some kind of a electromagnetic wave. तो हम जनरल केस के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है. we will try to prove it for the general case. Alright, so let's suppose this is x. एक ही पर्टिकुलर प्लेन में देखते हैं. Let's suppose this is x. Okay, and let's suppose this is phi angle at which some kind of a wave is being emitted. So this photon has an energy of, let's suppose, h nu, and it has a relativistic ordinary momentum of E upon c. So it is h nu upon c. Okay. Now इसी similar process को अगर ये rest frame में हो गया. Okay, this is a rest frame of source. Rest frame of source. Okay, there is some kind of a source here which is emitting light or something like that. Anything. So and from the perspective of, let's suppose, a moving frame where there is an observer who is moving with a particular velocity, let's suppose x dash and y dash ले क्या ले dash ये dash ले लेते, चलो कोई बात नहीं. So if you look at this again from his perspective, let's suppose the energy is going to be E dash is equal to h nu dash, and the momentum is going to be equal to h nu dash upon c, and the angle is going to be phi dash. Okay, so the relative motion is along this direction. So if we do this, then we can automatically look at the four momentum vectors. So let's look at the four momentum. So this is for rest frame, this is for moving frame. Moving frame of observer. ठीक है. So let's look at the four momentum. So the four momentum is P mu is equal to E upon C, right? And the components. So P1, P2, P3, P4, P5, P6 जो भी है. So यहाँ पे जो components क्या होगा? So components can be written as, components can simply be written as P nu, so h nu upon c, ठीक है. And components can be written as P is equal to h by c, right? h nu upon c, right? So h nu upon c, सबसे पहले तो x axis में let's suppose cos phi, h nu upon c, y axis में let's suppose sin phi, and z axis है नहीं, we're only looking at 2D, so this is equal to 0. Okay, so this can be written as P nu for the gamma photon or whatever radiation it is. So h nu by c को मैं अगर बाहर ले लूँ, so 1 cos phi sin phi. तो लाइट के लिए इन जनरल आप ऐसे भी लिख सकते हैं. The four momentum for light can be written as, for photon can be written like this also. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा जो है from rest frame. हाँ, तो from moving frame के लिए क्या होगा? So moving frame के लिए यूजुअली हम कैसे डिनोट करते हैं? हम बार से डिनोट करते हैं. E बार न्यू ऐसे डिनोट करते हैं ना, because there are two frames of reference. Let's suppose this is the rest frame is the S and this is the S bar. ये S dash जो भी है, मैंने यहाँ पे X dash लिख दिया ना. चलो कंसिस्टेंसी के लिए ये X bar Y bar ही देते हैं, पर यहाँ पे dash लिखा, कोई दिक्कत नहीं. So bar लिख दिया. So this is nothing but basically h nu dash upon c, and this is h nu dash upon c cos phi dash. Okay, इसको देखो. This is what it is going to be, and this is going to be h nu dash upon c sin phi dash, और ये 0 है. So ये तुम्हारा बन गया p bar mu is equal to h nu dash upon c 1. ठीक है. First term, second term is cos phi dash, third term is sin phi dash 0. Okay. So this is the four momentum vector at rest. This is the four momentum vector with respect to some kind of a moving source. तो यहाँ पे because there is only, यहाँ पे जो है इंटरेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर वेव को रेस्ट फ्रेम में देख रहे हैं कि उसका
उसका जो है फ्रीक्वेंसी क्या है और एक मूविंग ऑब्जर्वर देख रहा है। तो हम जब दो फ्रेम्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, देन व्हाट डू वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो 4 वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है? 4 वेक्टर, किसी भी 4 वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैंने बताया था, a बार म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ लैम्डा न्यू mu a nu, right? This is the transformation equation for a 4 vector where lambda mu is equal to gamma minus gamma beta gamma 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. ठीक है, this is a transformation equation for any kind of a 4 vector when you compare the components with respect to a rest frame and when you compare the components with respect to moving frame. तो momentum के लिए भी सेम रहेगा। For momentum, yes, any question? Momentum के लिए भी you will have the same kind of equation, lambda mu e mu. Okay, so momentum के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं? Momentum के लिए p bar naught p bar 1. Yes, यतेंद्र, क्या पूछ रहे हो? सर a की पावर गामा है, a की पावर गामा, गामा कहाँ पे गामा? गामा कहाँ लिखते हैं हम? न्यू, अच्छा, ओके ओके, अच्छा न्यू की बात कर रहे हो? अच्छा यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ओके, गामा नहीं है वो न्यू है, ठीक है ना? गामा तो फोटोन के लिए यूज कर रहा, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं हमने क्या यूज किया था लास्ट टाइम जब 4 वेक्टर डिफाइन किया था। 4 वेक्टर जब डिफाइन किया था, कहाँ डिफाइन किया था? हाँ, न्यू यूज किया, हाँ सही कह रहे हो, मैंने न्यू यूज किया, ठीक है, ओके। हाँ तो ये हो गया तुम्हारा, न्यू हो गया, चलो सॉरी, ओके। सो डज नॉट चेंज एनीथिंग बिकॉज आई हैव टू राइट द कंपोनेंट्स। सो p bar naught, p bar 1, p bar 2, p bar 3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस गामा, सॉरी नॉट माइनस गामा, दिस इज इक्वल टू प्लस गामा माइनस गामा बीटा 0 0 माइनस गामा बीटा गामा 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड p नॉट p1 p2 p3, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, एक वेव है उसको हमने रेस्ट फ्रेम से देखा और उसको मूविंग ऑब्जर्विंग फ्रेम से देखा। तो रेस्ट फ्रेम में मैंने 4 मोमेंटम वेक्टर को लिख दिया और मूविंग रिलेटिव मोशन में ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से लिख दिया, और अब दोनों के बीच में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा दिया, बस दैट्स इट। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कितना है, देयर आर 4 इक्वेशंस इन्वॉल्वड, लेकिन हमें जो है 4 इक्वेशंस नहीं चाहिए, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस इक्वेशन। जो दिस इक्वेशन है इससे रिलेटेड है ना, इससे रिलेटेड जो है, so that is what we are interested in, उसी से हम हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा। so उसका इक्वेशन लिख देते हैं। so p bar naught is equal to basically what, gamma p naught minus gamma beta p1, right, plus 0 ये है। so equation associated with the time component, टाइम कंपोनेंट। तो ये इक्वेशन क्या है, तो ये क्या है हमारे पास, तो यहाँ से कंपोनेंट्स को लिखते हैं, फिर ये यहाँ से लिखते हैं, ये दोनों इक्वेशन है ना हमारे पास, ये रेस्ट के लिए है और ये जो है मूविंग फ्रेम है रेफरेंस के लिए है। तो हम लिखते हैं फिर इसमें p bar naught क्या है, p bar naught है h nu dash by c, हाँ p bar naught है यहाँ पे h nu dash upon c, यहाँ गामा p नॉट क्या है, p नॉट है h nu अपॉन c, ठीक है, माइनस गामा बीटा क्या है, v अपॉन c है बीटा का वैल्यू, और p1 क्या है, p1 जो है p1 इज नथिंग बट cos phi है,
E1 इज नथिंग बट cos phi। ठीक है, कितना सिंपल हो गया, बाकी सब बढ़िया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बस इतना ही है। सो h न्यू डैश अपॉन c इज इक्वल टू, सो गामा को हम कॉमन ले लेते हैं, सो h न्यू अपॉन c माइनस, अरे यहाँ पे h न्यू बाई c भी है, P1 में h न्यू बाई c भी है ना, सॉरी ये तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, h न्यू बाई c, हाँ तो यहाँ पे h न्यू बाई c आएगा, h न्यू अपॉन c cos phi। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा माइनस v अपॉन c h न्यू अपॉन c cos phi, so this becomes h न्यू dash upon c is equal to gamma h न्यू अपॉन c को कॉमन ले लेते हैं, so 1 minus v upon c cos phi, so h cancel, c cancel, h cancel, c cancel, और न्यू डैश इज इक्वल टू गामा न्यू, ये न्यू है, ओके, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये गामा फैक्टर है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, सो 1 माइनस v अपॉन c cos phi, सो ये क्या हुआ तुम्हारा, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस v अपॉन c cos phi अपॉन रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यही तो है तुम्हारा जो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट अलोंग जनरल डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज द डॉपलर इफेक्ट फॉर जनरल डायरेक्शन। आप लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का भी यहाँ से निकाल सकते हो। सो फॉर स्पेशल केस अगर देखना चाहते हो, जैसे तुमने पहले दूसरे केसेस में प्रूफ किया होगा, तो phi is equal to 0। सो अगर phi is equal to 0 होगा मतलब बेसिकली यू आर लुकिंग एट द डॉपलर इफेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो मोशन की क्या एक्स एक्सिस में हो रहा है ना, मोशन इज हैपनिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अगर सोर्स की एकदम यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो phi is equal to 0 हो जाएगा। तो अगर phi is equal to 0 हो जाएगा देन cos phi is going out to be 1, then phi dash is equal to phi 1 minus v upon c root over 1 minus v upon c 1 plus v upon c। ठीक है, so ये जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू रूट ओवर 1 minus v upon c। so इसको लिखते हैं दिस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, so 1 minus v upon c, so ये हो गया तुम्हारा हाँ, so 1 minus v upon c रह गया, तो यहाँ पे रह गया 1 plus v upon c। That's it. So this is your longitudinal Doppler effect. ठीक है, so दो तरीका है रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एक तरीका तो मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट दोनों प्रॉब्लम्स में दिखाया कि कंजर्वेशन ऑफ 4 वेक्टर मोमेंटम यूज करके। दूसरा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करके। ठीक है, यहां पे कोई डाउट है बेटा बताओ? एनी डाउट हियर? हाँ कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल में भी कर सकते हैं। नहीं, सॉलिड एंगल तो नहीं होगा। सॉलिड एंगल तो बेटा वो होता है ना जहाँ पे सरफेस जो है सबटेंशन एंगल। यहाँ पे सॉलिड एंगल नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 एंगल्स होंगे। ठीक है, तुम्हारे एक्स एक्सिस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल होगा, वाई एक्सिस के साथ पर्टिकुलर एंगल होगा। ठीक है, बट वो कर सकते हो जनरल केस में, लेकिन जनरल केस में करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो एक ऑब्जर्वर और सोर्स का मूवमेंट है उसको हम प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स के रेस्पेक्ट में, तो उस मोशन को वी कैन रेस्ट्रिक्ट टू अ प्लेन, एंड इफ यू कैन रेस्ट्रिक्ट टू अ प्लेन देन व्हाई गो फॉर 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में भी कर सकते हो, लेकिन दिस विल बी अ स्पेशल केस ऑफ दैट एक्सप्रेशन दैट यू ऑब्टेन फॉर 3 डायमेंशनल केस। इट्स नॉट
बट ऑब्जर्वर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ना, रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस थिंग सोर्स एंड एन ऑब्जर्वर, तो उसको वी कैन रेस्ट्रिक्ट टू अ पर्टिकुलर प्लेन। कर सकते हो इशू। एनी क्वेश्चंस गाइस? नो क्वेश्चंस? समझ आ गया सबको? सबको समझ आ रहा है? ओके चलो एक लास्ट प्रॉब्लम में कर देता हूँ। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स पॉसिबल है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर पॉसिबल लाइक दिस। I cannot guarantee that these are the ones which will come. Let me give you a specific question. Question is, can a free electron absorb a single photon? Okay, so let's suppose तुम्हारे पास एक सिंगल फोटोन है। अब जैसे कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ, स्कैटरिंग हुआ ना। सो अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो कैन द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द फोटोन कंप्लीटली? इज इट पॉसिबल और नॉट, ये बताओ मेरे को पहले। इज दिस पॉसिबल और नॉट? हाँ क्या कह रहे हो? क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा? तो काइनेटिक करना शुरू करेगा, है कि नहीं? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट थोड़ी होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट होगा? नहीं होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट होना चाहिए। फिर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कभी इस तरह का प्रोसेस स्टडी किया है? इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन सॉरी, हाँ नहीं किया ना स्टडी कभी, क्योंकि ये फेनोमेना होता ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नेवर एब्जॉर्ब अ फ्री फोटोन। दिस फेनोमेना डज नॉट हैपन। इसलिए जब भी तुमने स्टडी किया होगा, हमेशा ये दो स्टडी किया होगा, तो कॉम्पटन इफेक्ट, स्कैटरिंग, या फिर कोई एटम के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा जो एटम होता है फ्री एटम नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन का पार्ट होता है। दृष्टि, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इट्स नॉट अ फ्री इलेक्ट्रॉन, it is an electron which is bound to a nucleus, and because it is bound to a nucleus, that is a completely different phenomena. ठीक है, there is a conservation of momentum associated with the nucleus also. जब इलेक्ट्रॉन जो emit होता है ना, तो nucleus also experiences certain kind of recoil. So photoelectric effect is possible, but free electron के लिए it's not possible. रक्षिता अभी ज्वाइन कर रहा है। क्या हो गया रक्षिता? 3 बज गया, अभी तो तुम ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ पे क्या है एक्चुअली जो है, सही कह रहे हो तुम, साइमल्टेनियसली एनर्जी और मोमेंटम जो है कंजर्व नहीं होता है, और वो दोनों को कंजर्व होना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो है ये प्रोसेस होता नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ, यूजुअली जो मटेरियल में जो लाइट फोटोन इंट्रोड्यूस होता है, तो वो मटेरियल के अंदर जो लाइट फोटोन कैन इंटरैक्ट विद एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर लेवल एनर्जी टू हायर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन बिकम फ्री, व्हिच इज अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज डिफिकल्ट। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम में क्या करेंगे, हम कहेंगे कि पी गामा म्यू, ठीक है, और पीई लिख दिया मैंने, लास्ट टाइम पी लिखा था, कोई बात नहीं, आई थिंक तुम लोगों को समझ तो आ ही रहा है, पीई डैश म्यू। ठीक है, इसको क्या करें, स्क्वायर करते हैं बस, पी गामा म्यू प्लस पीई म्यू, ठीक है, स्क्वायर इट, पीई डैश म्यू स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, पी गामा म्यू स्क्वायर, पीई म्यू स्क्वायर प्लस 2 पी गामा म्यू पीई म्यू इज इक्वल टू पीई डैश म्यू स्क्वायर। ओके, ये क्या होगा बताओ, पी गामा म्यू स्क्वायर क्या होगा?
गामा म्यू स्क्वायर क्या होगा? अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, क्या कर रहे थे? मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, गामा फोटोन के लिए जीरो होगा। गामा फोटोन के लिए जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए जीरो होगा। और ये हो गया तुम्हारा क्यू पी गामा म्यू पी ई म्यू, ठीक है। और इस राइट हैंड साइड में क्या होगा इलेक्ट्रॉन के लिए? ये भी माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कैंसिल। कैंसिल होने के बाद बचा क्या? पी गामा म्यू पी ई म्यू इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इज पी गामा? पी गामा इज नथिंग बट एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी, जीरो जीरो, है ना, प्रोटॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस पे था तो एम नॉट सी जीरो 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 इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हुआ? दिस इज नथिंग बट ये जो टर्म है, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। बचेगा तुम्हारा माइनस माइनस एच न्यू अपॉन माइनस एच न्यू अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय एम नॉट सी इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इज एच न्यू? एच न्यू क्या है? इट इज द एनर्जी ऑफ द CC cancel. It is the energy of the photon. So minus energy of the photon into rest mass energy of the electron is equal to zero, or rest mass of energy into rest mass energy of rest mass of electron plus energy of the photon is equal to zero. तो ये इक्वेशन पॉसिबल है क्या? It is possible. Yes, very good. So this is not possible to be. It is not zero. zero हो नहीं सकता. रेस्ट मास है ना, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो कैसे हो सकता है? और लाइट फोटोन का भी एनर्जी जीरो नहीं हो सकता, मतलब जीरो होने का मतलब है लाइट फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। सो जैसा लक्ष्य ने स्टार्टिंग में बताया कि साइमल्टेनियस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम नॉर्मली नॉन फोर वेक्टर यूज करके देखते हो तो साइमल्टेनियस कंजर्वेशन जो है जीरो नहीं होता है। तो उसको फोर वेक्टर से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो यही है, दिस इज, सो वी हैव डिस्कस्ड द डीके ऑफ एन अनस्टेबल पार्टिकल, वी हैव डिस्कस्ड कॉम्पटन इफेक्ट, वी हैव डिस्कस्ड डॉपलर इफेक्ट, आई हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नॉट बीइंग एबल टू बी absorb a single photon। इस तरह से जो है बहुत सारे relativistic kinetics के प्रॉब्लम्स पॉसिबल है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच जो भी हमने डिस्कस किया। या तो कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम ले लो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ले लो, यही दो है। और बाकी और कुछ ट्रिक यूज भी करेंगे तो इट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड।